On this very special day, which we defined as the Science and Art Exhibition in the school. Of course, with the means of Science Exhibition and Art Exhibition, we are observing the confidence and eagerness of the students from last 7 to 10 days. Today, my students are here with their little effort, with their... My name is Shumaila Azhar. We have made a smart city. This is electricity. This is a building, police station, fire station, hospital, bank, hotel, residence, greenhouse, mall, waste management department, parking. We have to develop our city. That's why we have made it a smart city. Produce electricity. So in cities there are large buildings which uses electricity, sir, but which uses electricity, but sir, human waste also electricity. So sir, by this windmill we can produce electricity and save it for future use. And sir, by this we can also save our coal and petroleum by which electricity is produced. Thank you, sir. We have divided it in 5 parts. Part 1, meteorite. First, our sun was always covered with meteorites and surrounded by dust particles. Later, due to gravity, it came together and formed a lava ball. And later, many meteorites came and there was a meteorite shower which brought water on the earth and it formed our blue planet Earth. And after that, there was volcanic eruption which brought inside land upside on the water and released CO2 in the environment. Our rock absorbed all the CO2 and it formed Ice Age. The ice is end due to again volcanic eruption which released CO2 and there was no rock to absorb it, and it trapped sun rays which increased the temperature of the earth and our Ice Age end. Later, our one more meteorite shower was there which brought amino acid on the earth and it started our microbacteria. Windmill is used to produce electricity. Windmill works on a simple principle. In India, windmill is located in Gujarat, Maharashtra, Kerala, Rajasthan, etc. Thank you, sir. What is your name? Rishabh Kumar. Your class? 5B. तो जब इस कैंपस में आया हूँ तभी से लगा कि बहुत वाइब्रेंट कैंपस है। ये जो डायरेक्टर बंधु दोनों आदमी ऐसे खान साहब हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि दरभंगा में इतना सुंदर स्कूल बनाए हैं। इनका जो ड्रेस कोड है वो देखा होगा आपने, ग्रीन। हम लोग कहते हैं हरा रंग है हरी हमारी धरती की हरियाली, और ये बच्चे वास्तव में हमारे भारत के भविष्य हैं। ये सब शो करता है कि स्कूल के भीतर का प्रबंधन बहुत ही सुंदर है, और जो बच्चों की प्रतिभा को भी देखा है मैंने, जो शिक्षक लोगों को देखा है, तो ये लग रहा है कि मिथिलांचल के लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतना सुंदर स्कूल खुला है और बच्चों ने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो ये जो एग्जीबिशन होता है, मेरे व्यक्तिगत समझ में है कि इस तरह के आयोजन से बच्चों का जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है, जो स्किल डेवलपमेंट की बात हम लोग करते हैं, उसका विकास होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ता है। बच्चे जो किताब में थ्योरी पढ़ लेते हैं उसको अधिक अच्छा से समझते हैं जब उसको वो प्रयोग में करके देखते हैं, तो उस थ्योरी पर उनका विश्वास बढ़ता है, साइंटिफिक टेम्पर बच्चों का बढ़ता है। और यही चाहिए, साइंस के कुछ थ्योरी को याद करके किताब में परीक्षा में बच्चा पास हो गया, उससे विज्ञान पर उसका विश्वास नहीं बढ़ता है। लेकिन जब वो करके देखता है और उसके सामने रिजल्ट आता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, विज्ञान पर विश्वास बढ़ता है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, उसका हुनर बढ़ता है, और हमारे देश के भविष्य के लिए ये बच्चे निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे होंगे। उसी तरह जब आर्ट्स एग्जीबिशन होता है, उसमें कुछ बनाता है बच्चा, तो बनाने की कला का विकास होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है कि हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। ये जो बच्चे आत्मविश्वास से लबरेज होकर आगे बढ़ेंगे, जिनमें भावना होगी कि हम कुछ कर सकते हैं, यही बच्चे हमारे समाज के लिए उपयोगी होंगे। आज दिल्ली पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन लगाया गया है, जो बच्चों के द्वारा
जिस तरह से बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, जो उनका थ्योरी का मामला होता है, जो थ्योरी पढ़ाया जाता है उसका ये एक तरह से प्रैक्टिकल है उनका, यानी उन चीज़ों को बना करके दिखाना, उसकी किस तरह से जो हमने पढ़ा है उसको हम कैसे बना सकते हैं, बना करके उसको अपनी ज़िंदगी में या अपने देश के लिए इसको आगे की ओर कैसे बढ़ा सकते हैं। ये हर तरह का आपने देखा होगा कि बच्चों ने जिस तरह से साइंस और आर्ट में तरह तरह की मॉडल्स बनाई है, उस मॉडल के माध्यम से बच्चों ने ये दर्शाया है कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ। ये टैलेंट है बच्चों के अंदर में, और उनके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं वो आज जो उजागर हो रही है और अपने आप को प्रूव कर रहे हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ देश के लिए, दुनिया के लिए, अपने लिए। तो इसीलिए हर साल इस तरह का प्रदर्शनी जो है वो लगाया जाता है, ताकि बच्चे जो पूरे साल की पढ़ाई करते हैं उस पढ़ाई के करने के क्रम में उन्होंने जो पढ़ा तो पढ़ करके उसको प्रैक्टिकली नॉलेज उनके अंदर में है कि नहीं, वो जब बनाना शुरू करते हैं तो उनका जो बौद्धिक क्षमता है वो और बढ़ता है, उनके अंदर जो ज्ञान होती है वो और बढ़ती है, और वो चाहते हैं कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपने लिए भी और अपने देश के लिए। तो इसीलिए इस तरह का प्रदर्शनी जो है वो लगाया जाता है, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही वो और अच्छा कर सकें। सर कौन कौन सी क्लास के बच्चे भाग लिए? ये क्लास 3 से है, क्लास 3 से 10 तक के बच्चे हैं जिन्होंने भाग लिया है। किनके द्वारा उद्घाटन का? डॉक्टर पेन मिश्रा से है जो HOD केम है, उनके द्वारा, चूँकि उन ऐसे ही शिक्षाविदों की ज़रूरत है कि जो बच्चों को इस तरह से बता सके और वो समझ सके कि यहाँ के बच्चे जो है इनके अंदर कितनी प्रतिभा है और ये क्या कर सकते हैं, और उन्हें किस तरह से नसीहत दिया जाए उनको। इसलिए ऐसे विद्वान लोगों को बुलाया जाता है ताकि बच्चों को कुछ न कुछ मिल सके, और उनके आने से मैं उनका बहुत ही आभारी हूँ कि वो आप आ जाए और आकर के बच्चों को बहुत अच्छी बातें बताई कि आगे किस तरह से बढ़ना है, हमारे टीचर्स को भी और गार्जियंस और बच्चों को भी। जिस तरह से उन्होंने बताया है, मैं समझता हूँ कि उनके इस वचन से, उनकी बातों से, उनके ज्ञान से हमारे बच्चे जो हैं वो बहुत लाभान्वित हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मैं उनका बहुत आभारी होता है। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर SA खान, निदेशक हूँ दिल्ली पुलिस स्कूल दरभंगा।